Hello students, welcome to the next lecture of solution and colligative property. In this lecture we are going to discuss and I'm going to discuss about solubility of different solute in a particular solvent. Solubility of different solute in a particular solvent. Now solute can be a solid which can be dissolved in liquid, a solute can be gas dissolved in liquid, a solute can be a solid dissolved in solid. So we are going to discuss about different types of solubility of solute and different types of solvent. So first of all, what is the meaning of solubility? So solubility is the maximum amount of solute in given amount of solvent. So maximum amount of solute dissolved in given amount of a solvent is called as solubility. And if you remember, हम लोग ने आयनिक में भी देखा था कि solubility can be in moles per liter, that is a molar concentration, or it can be gram per liter. कितना ग्राम कितने लीटर में डिसॉल्व है और कितना मोल्स कितने में डिसॉल्व है. So that is a solubility, the given amount of a solute या maximum amount of solute that can be dissolved in given amount of solvent, that is called the solubility of the solution. Now solubility depends on the first and most important factor on which the solubility depends is the funda of like dissolve like. Like dissolve like पे पूरा सिस्टम चलता है. That is polar solute likes to dissolve in polar solvent. For example, like NaCl, which is a polar molecule, ionic molecule having Na plus and Cl minus ions. It is more soluble in H2O, where H2O is delta minus and delta plus, a polar water. And if you remember, water is the best polar solvent. तो उसमें जब NaCl डालोगे तो NaCl will get hydrated easily, मतलब they get surrounded by the water molecules. Water molecule has two ends, Na plus ions and Cl minus ions. These Na plus ions will be surrounded by the negative ions, that is OH, H, O, H, H, O. These are negative part. Or Cl minus will be surrounded by the positive part, that is the hydrogen. This is called as hydration, and because of the hydration energy more than the lattice energy, it get break and get solubilized to form a cation, that is Na plus and Cl minus ions. Similarly ionic solutes को छोड़ के अगर आप दूसरे बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल पोलर मॉलिक्यूल लाइक अल्कोहल. Alcohol में O is delta minus, H is delta plus, a polar molecule. It can also be soluble in water. So it get more soluble in water. Why? Because even water is polar. So this alcohol, which is delta minus delta plus, forms a hydrogen bonding with water. देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं, OH, H, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस. दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबल हो रहा है, ये डिसोसिएशन की वजह से सॉल्युबल हो रहा है, बिकॉज हियर इन दिस केस द हाइड्रेशन इज मोर देन द लैटिस एनर्जी. मतलब जब हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन दी डेल्टा LH, लैटिस एनर्जी, द आयनिक सॉल्ट गेट इजीली सॉल्युबलाइज. एंड दूसरा वे क्या है, तुम इनके साथ में क्या करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाओ. और तीसरा वे क्या है, यू कैन रिएक्ट विद देम. फॉर एग्जांपल पोलर गैसेस लाइक CO2 gas, like a CO2 gas, like ammonia gas, etc. They react with water. CO2 will form carbonic acid, H2O will form H2CO3. Ammonia with water, it forms NH4OH. So the funda of like dissolve like is that polar solute likes to dissolve in polar solvent. मतलब NaCl water में ज़्यादा soluble है as compared to नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन. बेंजीन में इनसॉल्युबल रहेगा बिकॉज बेंजीन इज नॉन पोलर. तो अगर मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेंजीन में, तो फॉर एग्जाम्पल नैफ्थलीन. नैफ्थलीन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड. ये नैफ्थलीन इज मोर सॉल्युबल इन बेंजीन. वाई? बिकॉज बेंजीन भी नॉन पोलर है, नैफ्थलीन भी नॉन पोलर है.
तो नॉन पोलर में ज़्यादा soluble होगा. So NaCl will be more soluble in water because it is polar and it is less soluble in benzene as non-polar. But naphthalene is more soluble in benzene and insoluble in water because water polar है. So like dissolve like का फंडा याद रखना ज़रूरी है. Second point you need to remember कि whenever you add a polar solute into water, either it should get hydrate and dissociate. और ये कब होगा? When hydration energy is greater than the lattice, तो ionic salt break हो जाते हैं. Or they form hydrogen bonding with water. Being polar, they can form hydrogen bonding like alcohol हो गया, acid हो गया. They form hydrogen bonding with water. Or they should react with water like CO2, ammonia. When they are added to water, they form carbonic acid, NH4OH, ammonium hydroxide. SO2 को डाला तो sulfurous acid बनेगा. So when they react with water, they get solubilized और उनकी solubility बढ़ जाती है because of the reaction. So everyone has to remember that solubility depends upon like dissolve like funda. Clear है? Now let us talk about first solution of solubility, that is a solid in liquid. जहाँ पर solid आपका solute हो गया और liquid आपका solvent हो गया. ठीक है? So when solid is added to liquid, we know that there are three kinds of solution generated. Either it will be unsaturated solution or it will be saturated solution or it will be super saturated solution. Now unsaturated solution सबको पता है where more solute can be further dissolved. लिक्विड का डिजॉल्विंग कैपेसिटी फिनिश नहीं हुआ है, आप उसमें और सल्यूट ऐड कर सकते हो. तो मतलब अनसैचुरेटेड आर दो सॉल्यूशन वेयर more solute can be added. इसमें saturation में the dissolving capacity of the solvent is over, so you cannot add more solute and you cannot dissolve that more solute at a fixed temperature. So saturated solution are those solution where no more solute is further dissolved. Dissolve नहीं हो रहा है ज़्यादा solute. And always remember, in case of saturated solution, there is a equilibrium developed between solute in solid state and solute in dissolved state. Suppose water लिया है तो aqueous state लिख सकता हूँ मैं. Always there is a equilibrium. For example, आपने 20 ml water लिया beaker में, you add 5 gram of NaCl, stir it, वो पूरा dissolve हो गया, you cannot see anything. Then you add 2 gram, उसमें से थोड़ा dissolve हुआ है, बाकी का bottom पे रह गया है at that fixed temperature. So you keep stirring it, आप उसको stir करते जा रहे हो, थोड़ा बहुत dissolve हुआ, अब बाकी आप छोड़ दोगे इसको. After some time you will see कि solid particles remains at the bottom. You will say, sir, जो नीचे bottom पे particle है, that is not getting dissolved. मैं बोला yes, because this is a saturated solution. इसमें वाटर का डिजॉल्विंग कैपेसिटी फिनिश हो गया है, बट जो सल्यूट बॉटम पे है क्या वो अनडिजॉल्व ही रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है. व्हाट विल हैपन व्हेन यू ऐड व्हेन यू मेक अ सैचुरेट सॉल्यूशन, यू हैव दैट सॉलिड पार्टिकल लेफ्ट बिहाइंड एट द बॉटम. सो विल इट गेट सॉलेबलाइज आफ्टर द डिजॉल्विंग कैपेसिटी ओवर? यस. फॉर एग्जाम्पल, आपने इसके अंदर NaCl डाल के एक सैचुरेट सोल्यूशन बना दिया. अब ये NaCl जो बॉटम पे है ये सॉलिड स्टेट में है और बाकी का Na+ और Cl- आयंस एक्वस स्टेट में है. तो अब सैचुरेशन पॉइंट रीच होने के बाद क्या ये बॉटम के NaCl डिजॉल्व होना बंद हो जाएंगे? नहीं, वो डिजॉल्व होंगे, बट देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्हेन NaCl in the solid state, and these are Na plus and Cl minus ions in aqueous state. Okay, so what will happen when saturation point is reached, जहाँ पर आपको bottom पे solid particles दिखेंगे? So at that time, if from the solid particle, if one NaCl get dissociate at the same speed, the same time, one Na+ and Cl- will associate back to form NaCl. So there will be an equilibrium between dissociation and precipitation. मतलब वो dissolve से undissolved state में आ गए. ठीक है? So there will be an equilibrium and this equilibrium is dynamic.
इसका मतलब ये है कि जब भी वाटर पार्टिकल, अब इस केस में वाटर पार्टिकल है अंदर, वाटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, सो व्हेन दैट मूविंग वाटर पार्टिकल कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद NaCl लैटिस जो सॉलिड स्टेट में है, सो वो वाटर क्या करेगा, Na+Cl- को सराउंड करके हाइड्रेट करके ब्रेक करेगा, ब्रेक हो गया। बट एट द सेम टाइम जो Na+Cl- सोल्यूशन में है, दे विल कम ऑन द सर्फेस ऑफ लैटिस एंड दे विल बिकम द पार्ट ऑफ द लैटिस, दैट इज प्रेसिपिटेशन, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में आ गए। तो सॉलिड से Na+Cl- लिक्विड में जा रहा है एंड द सेम स्पीड लिक्विड का Na+Cl- सॉलिड में आ रहा है, सो दैट द अमाउंट ऑफ सॉलिड एट द बॉटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड ऑल्सो डिसोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन, NaCl का डिजोल्व होना और NaCl का वापस फॉर्म होना आयन से, वो रुकेगा नहीं, इट विल गो ऑन डायनेमिकली इनसाइड द सोल्यूशन। सो दैट इज ऑल अबाउट सैचुरेट सोल्यूशन, याद रखने का। सुपर सैचुरेट सोल्यूशन कब होता है, व्हेन यू ऐड एडिशन ऑफ मोर सल्यूट, ज्यादा सल्यूट ऐड हो गया, ठीक है, मोर सल्यूट एट डिजायर्ड इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम से ज्यादा सल्यूट डिसॉल्व हो गया है, दैट इज कॉल्ड ए सुपर सैचुरेटेड। ये एक अनस्टेबल होता है, इसमें अगर थोड़ा सा भी आपने बाहर से सल्यूट ऐड किया तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा एंड इट गेट कन्वर्ट इनटू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो सुपर सैचुरेशन में इक्विलिब्रियम से ज्यादा सल्यूट डिसॉल्व होता है, तो ये एक अनस्टेबल है बिकॉज लिक्विड के अंदर बहुत ओवर क्राउडिंग हो गया है, अब आयंस को बाहर आना है, तो आप थोड़ा सा बाहर से सल्यूट ऐड करोगे उस सोल्यूशन में, सो व्हाट विल हैपन, द प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस, मतलब जो एक्स्ट्रा सल्यूट था वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ गया एंड it will get converted into a saturated। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है जिसमें मैक्सिमम 40 स्टूडेंट सीट्स पे बैठ सकते हैं, तो ये 40 स्टूडेंट्स आर देयर, इट इज अ काइंड ऑफ सैचुरेशन, देयर इज नो मोर सीट। बट व्हाट विल हैपन, सपोज 10 मोर स्टूडेंट्स गेट इनसाइड द क्लास, when they are getting inside the class they adjust themselves on the benches and they get fit into the position, लेकिन जगह है नहीं और एक्सेस भर गया है, 40 होना चाहिए बट 40 से 10 एक्सेस हो गया, 50 हो गया, तो दैट इज अ सुपर सैचुरेशन स्टेट। अब उसमें क्या होगा, एक और 2 स्टूडेंट भी ऐड हो गए तो उनके लिए तो अब जगह ही नहीं है, सो बाकी की जो 10 है उनको भी मैं बाहर निकाल दूंगा कि यू जस्ट गो आउट ऑफ द क्लास बिकॉज एक्सेस होते जा रहा है स्टूडेंट। सो अब जब मैं 10 लोगों को बाहर निकाल दूंगा तो व्हाट विल हैपन, अगेन दे बिकम 40, मतलब दे बिकम सैचुरेटेड। तो सुपर सैचुरेटेड में एक्सेस सल्यूट होता है सोल्यूशन में, और जब आप बाहर से थोड़ा सल्यूट ऐड करते हो तो वो एक्सेस सल्यूट प्रेसिपिटेट होकर लिक्विड से बाहर आ जाएगा और सोल्यूशन बन जाएगा सैचुरेट। तो सुपर सैचुरेशन से सैचुरेशन लाना है तो प्रेसिपिटेशन करो, कैसे, थोड़ा सल्यूट ऐड करो। सो वी कैन राइट डाउन एडिशन ऑफ सल्यूट रिजल्ट इनटू व्हाट, प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन हुआ तो सुपर सैचुरेटेड कन्वर्ट्स इनटू सैचुरेटेड। तो याद रखने का, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि 40 स्टूडेंट का क्लास है बट ओनली 25 आर देयर इनसाइड, तो दैट इज अनसैचुरेटेड। ऑल 40 आर देयर, तो दैट इज सैचुरेटेड। लेकिन सैचुरेशन में हमेशा इक्विलिब्रियम होता है, मतलब मैक्सिमम 40 बैठे हैं, अगर 2 स्टूडेंट एंटर करेंगे तो 2 बाहर आ जाएंगे, 5 एंटर करेंगे तो 5 उसकी जगह से बाहर आ जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन एक स्टेट ऐसा आएगा कि अगर ज़्यादा सल्यूट डिसॉल्व हो गया एट अ टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, सपोज ज़्यादा सल्यूट डिसॉल्व हो गया, मतलब 40 स्टूडेंट का मैक्सिमम कैपेसिटी है, 10 स्टूडेंट और आ गए उसके अंदर, कैसा कैसा करके एडजस्ट हो गए, तो इट इज़ अ सुपर सैचुरेटेड, क्योंकि इक्विलिब्रियम से ज़्यादा लोग ऐड हो गए। अगर अब इस केस में 2-3 और स्टूडेंट आ गए, मतलब सल्यूट इज बीन एडेड फ्रॉम आउटसाइड, देन जो एक्सेस थे 10 स्टूडेंट दे विल मूव आउट, क्योंकि जगह नहीं है, दे हैव टू गो आउट। सो अब क्या होगा, वो बाहर चले जाएंगे, 40 रह जाएगा, मतलब सुपर सैचुरेटेड किस में कन्वर्ट हो गया, अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो व्हेन यू ऐड सॉलिड एंड लिक्विड यू गेट 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ओके, जो भी कॉपी करना है कर लो पॉज करके। आई विल रब दिस आउट नाउ। नाउ रिमेंबर, the factors
factors for solubility of solid in liquid. तो उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है, अभी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया, लाइक डिजॉल्व लाइक का, मतलब पोलार पोलार में, नॉन पोलार नॉन पोलार में. तो पहला फैक्टर ये आता है, मतलब NaCl अगर सॉलिड है तो वो वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व होगा, बेंजीन में इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि वाटर इज पोलार, सो इट गेट हाइड्रेट, इट ब्रेक्स दैट, हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर, तो लैटिस ब्रेक होगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो लाइक डिजॉल्व लाइक का फंडा तो पहले ही इसको कंट्रोल करता है, सॉलिबिलिटी को. द सेकेंड फंडा इज अबाउट टेम्परेचर. मैं कितने लोगों को पूछता हूं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एडिशन ऑफ सॉलिड टू अ लिक्विड. तो हमेशा लोग वही बोलते हैं कि सर जब आप हीट करोगे तो लिक्विड गेट एक्सपांड एंड सॉलिड गेट सॉलेबलाइज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, क्योंकि अगर लिक्विड एक्सपांड होगा तो जगह बनेगी तो सॉलिड ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा. तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल इंक्रीज इन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड. ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ध्यान देना, सॉल्ट्स लाइक NaCl हो गया, KCl हो गया, अगर ये सब सॉल्ट की हम लोग बात करेंगे, दीज सॉल्ट्स NaCl, KCl, NaNO2, सोडियम नाइट्राइड etc., when they are added to water, their dissolution is एंडोथर्मिक. मतलब जब आप इनको पानी में डालोगे तो इनका डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि NaCl को पानी में ऐड करोगे तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा डिसोसिएट होने के लिए. इसके लिए आपको याद होगा, द प्रिमिटिव वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ फीवर फ्रॉम हेड, गेटिंग रिड ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हेड इफ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ हाई फीवर, तो उसका सबसे पहला पार्ट ये है कि उसके ब्रेन में वह टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए. तो व्हाट इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दैट हाई टेम्परेचर? वी टेक अ क्लॉथ दैट इज कार्बन, you put that, soak that cloth in a very cold water containing NaCl, chilled water containing NaCl. So what will happen? NaCl to dissociate it requires heat, but वो chilled water में heat नहीं है. So when you put that cloth inside the water, you dip the entire cloth inside the water having NaCl, you remove that, you put on the forehead of patient. So what will happen? The cloth consists of water, it has lot of undissociated NaCl. For the dissociation of NaCl, it is endothermic, it require heat. So that NaCl to dissociate, it will take the heat from the forehead of the patient, तो उसका हेड टेम्परेचर डाउन होगा. सो NaCl को डिसोसिएट होने के लिए हीट चाहिए, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ NaCl, डिसोल्यूशन ऑफ KCl, डिसोल्यूशन ऑफ NaNO2 रिक्वायर हीट, दैट इज एंडोथर्मिक. तो जितना आप हीट प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा वो डिसॉल्व होगे. तो इस केस में वी कैन राइट डाउन एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस. ये केस में. अब एक दूसरे टाइप के सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट्स लाइक Ce2SO4 थ्राइस, सीरियम सल्फेट हो गया, Li2SO4, लिथियम सल्फेट हो गया, एक्सेट्रा. अगर इनको आपने वाटर में ऐड किया तो इनका डिसोल्यूशन जो है वो एक्सोथर्मिक है. मतलब सीरियम सल्फेट को यू टेक बीकर कंटेनिंग वाटर, यू ऐड सीरियम सल्फेट, बीकर गर्म हो जाएगा. सर गर्म क्यों हो गया बीकर? मतलब इसके लिए हो गया कि व्हेन सीरियम सल्फेट डिसोसिएट इनसाइड इट रिलीज हीट. तो अब ये हीट रिलीज कर रहा है, इसको हीट की जरूरत नहीं है. सो इन दिस केस एज टेम्परेचर इंक्रीज, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका सॉलिबिलिटी कम हो जाएगा. उसका रीजन क्या है? बिकॉज इट डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक. ये एक्सोथर्मिक है पानी के अंदर. मतलब if I take Le-Chatelier's principle, so Li2SO4, lithium sulfate when added to water, it forms Li2SO4. Li2SO4 dissociate to form 2 moles of Li plus SO4 minus 2 plus heat,
मतलब ये डिसॉल्व हो रहा है तो हीट लिबरेट कर रहा है, तो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है और इसका बैकवर्ड रिएक्शन एंडो है। और एक्सो लो टेम्परेचर पे होता है, एंडो हाई टेम्परेचर पे होता है। मतलब अगर इस केस में आपने पर्पसली हीट बढ़ाया, सो व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट फॉलोइंग द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब वो वापस उनका सॉलिबिलिटी कम हो जाएगा, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाएंगे। सो इस केस में एज यू इंक्रीज टेम्परेचर सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस। ये कौन से सॉल्ट है जिनका डिसोल्यूशन एक्सो है? क्लियर है? ये हमेशा याद रखने का कि जिसका डिसोल्यूशन एक्सो हुआ, in that case the solubility decreases with the increase in temperature. I'll rub this out. अच्छा, अभी एक थर्ड टाइप का सॉल्ट होता है, थर्ड टाइप का सॉल्ट होता है, that is the salt, or I can write down solubility of salt depending on transition temperature. Now what is this transition temperature? Let us try to analyze this by taking an example of sodium sulfate decahydrate. Sodium sulfate Na2SO4 10 times H2O, ग्लोबस सॉल्ट भी बोलते हैं इसको। नाउ दिस Na2SO4 H2O इफ हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसमें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है, वाटर उसके क्रिस्टल में स्टोर रहता है। व्हेन यू ऐड दिस टू वाटर इट गेट्स सॉल्युबलाइज। फिर जब आप इसको हीट करते रहोगे इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, हीट करते रहोगे इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। कब तक के? अप टू अ टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2SO4 10H2O will increase with the increase in temperature, but up to a transition temperature, and the transition temperature for sodium sulfate is 32.38 degrees Celsius. So when you heat this 32.38 डिग्री सेल्सियस लेस देन, इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है, इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। लेकिन जब आपने इसके ऊपर हीट करना चालू किया, 32.38 डिग्री के ऊपर हीट करना चालू किया, सो व्हाट विल हैपन, दिस डेकाहाइड्रेट में से वाटर विल इवेपोरेट, वाटर विल बी लॉस एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Na2SO4, दैट इज अनहाइड्रस फॉर्म। और अनहाइड्रस फॉर्म में सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, कम हो जाती है। सो 32.8 डिग्री से ऊपर हीट करोगे तो ये हाइड्रस फॉर्म से एनहाइड्रस फॉर्म में आएगा और सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर आपने टेम्परेचर लेस देन 32.38 डिग्री रखा है तो उसका सॉल्युबिलिटी विल बी मोर। सो Na2SO4 10 times H2O is that type of salt which solubility depends upon transition temperature। मतलब अभी 25 डिग्री सेल्सियस पे आपने वाटर लिया, उसमें Na2SO4 10H2O ग्लोबस सॉल्ट को ऐड किया, स्टर किया, हल्का हल्का हीट किया, 25, 26, 27, 28, 29, 30, आप देख रहे हो सर 30, 31 तक जितना भी सॉल्ट है वो डिसॉल्व होता जा रहा है 32.38 तक। 32.38 के ऊपर हीट किया, जैसे ही टेम्परेचर 33 पर पहुंचेगा, 34, 35, 36, जो डिसॉल्व सॉल्ट रहेगा वो बॉटम पे आपको दिखने लगेगा इन द अनडिसॉल्व सॉल्ट। आप बोलेंगे सर आई ऐड Na2SO4 हाइड्रेटेड फॉर्म 10 times H2O in water at 25 degrees Celsius, I have started heating it up to 32.38 degrees Celsius, I am getting a clear solution, पूरा डिसॉल्व हो गया। But above that temperature when you heat 32.38 you get solid particle in the bottom generating। आप बोलेंगे सर सोडियम सल्फेट जो डिसॉल्व हो गया था 32.38 तक, उसके बाद में वो अनडिसॉल्व स्टेट में आ रहा है। मतलब रीजन ये है कि आफ्टर 32.38 डिग्री सेल्सियस इट कन्वर्ट इटसेल्फ फ्रॉम द हाइड्रस फॉर्म टू द एनहाइड्रस फॉर्म, एंड एनहाइड्रस फॉर्म इज नॉट सो सॉल्युबल एज कंपेयर टू एनहाइड्रस फॉर्म। तो एनहाइड्रस फॉर्म इज नॉट सो सॉल्युबल एज कंपेयर टू हाइड्रस फॉर्म, देयरफॉर अबव 32.38 डिग्री सेल्सियस उसका सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है एंड बिलो 32.3 डिग्री सेल्सियस उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। तो सच सॉल्ट their solubility depends upon the transition temperature where they are changing from one form hydrous form into the another form anhydrous form।
Okay guys, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड. अच्छा, उसके बाद में जो थर्ड फैक्टर होता है वो है प्रेशर. बट इसका कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं ज़्यादा. वाई? बिकॉज वी नो दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड आर नॉट कंप्रेसिबल, आर नॉट सो कंप्रेसिबल. तो प्रेशर का कोई सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स पे फर्क नहीं पड़ता. ओके, तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन लाइक डिसॉल्व लाइक का फंडा, पोलर पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर. टेम्परेचर में ध्यान देने का, सम सॉल्ट इन वाटर इज एंडोथर्मिक, तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सम सॉल्ट इन वाटर द डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, सो डोंट हीट, अदरवाइज सॉलिबिलिटी कम होगा. एंड सम सॉल्ट at a particular heating after a particular temperature they change from one form, that is hydrous form, to the anhydrous form. और hydrous form का solubility ज़्यादा होता है, anhydrous form का solubility कम होता है. तो that temperature will be called as transition temperature. Okay, pause करके जो भी note down करना है वो note down कर लो. Then we'll move on to the next part. Okay guys, after the discussion of solubility of solids in liquid, let us talk about solubility of gas in liquids. तो gas in liquids मतलब gas आप ऐड करो liquid में. The first factor which affects the solubility of gas in liquid, the first factor is, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. ओके, दैट इज इफ यू हैव गैसेस दैट इज पोलर इन नेचर लाइक HCl, तो वो वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाएगा बिकॉज वाटर इज पोलर. यू हैव गैसेस लाइक CO2, गैसेस लाइक अमोनिया, दे गेट इजीली सॉल्युबलाइज्ड बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर. एंड यू हैव गैसेस लाइक नियॉन, हीलियम, hydrogen, oxygen. These gases are not so soluble in water. Reason they are non-polar in nature. So like dissolve like का फंडा यहाँ पर भी exist करता है. The second हम लोग ने डिस्कशन किया था सॉलिड में is the effect of temperature. तो ये सॉलिड्स की तरह नहीं होते कि 3 डिफरेंट स्टेट्स रहेंगे जहाँ पर एक्सो, एंडो या ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा. नो, if you add a gas, मतलब if you take a solute which is in gaseous state and you add into a liquid, suppose हम लोगों ने solvent लिया है, the solvent is in liquid state, so they are dissolution to form a solution. Gas dissolve in liquid solution is exothermic, it releases heat. मतलब इसका फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्सो है और इसका बैकवर्ड रिएक्शन होगा वो एंडो होगा. तो ऑब्वियस बात है, अकॉर्डिंग टू ली-चार्टलियस प्रिंसिपल, इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक यू कैरी आउट द रिएक्शन एट लो टेम्परेचर. तो अगर आप हाई टेम्परेचर करोगे तो गैस का सॉलिबिलिटी कम हो जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यार एरिएटेड ड्रिंक्स, हम लोग जितने भी एरिएटेड ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं, इन दैट सील्ड बॉटल हाई प्रेशर गैस इज डिजॉल्व, दैट इज अ कार्बोनेटेड गैस सिस्टम प्रोड्यूस करने के लिए. हाई प्रेशर गैस CO2 इज डिजॉल्व इनसाइड द लिक्विड टू फॉर्म द एरिएटेड ड्रिंक्स, द बेवरेजेस जो हम लोग कंज्यूम करते हैं. ओके, द सॉफ्ट ड्रिंक्स विच वी कंज्यूम, इट हैज़ अ गैस inside it dissolved at a high pressure. Now if we keep that bottle of aerated drinks at a high temperature, the solubility of gas inside will decreases, and if we keep them in fridge the solubility of gas will be more. So it depends upon कि गैस आपने कौन से स्टेट में फिल करी है. ठीक है, रीज़न क्या है? As the temperature increases, the water or the liquid which is your solvent, the solvent liquid, it will expand. When it expand, it will release the gas which is trapped between and the gas is released. तो गैस अगर रिलीज हो गया तो उसकी solubility कम हो जाएगी. तो remember that as temperature increases, solubility of gas in liquid decreases. इसके लिए that is the reason fishermen during summer season they plant their net. Okay, the fishing net जो लोग प्लांट करते हैं, they use high length bamboos, they dig that bamboos in the seashore when there is low tide and they build up a net over there. अब वो जो net जो build कर रहा है
वो बहुत दूर जाके बिल्ड करते हैं सी शोर में. उसका रीज़न क्या है? When the temperature is high in the summer season, the upper surface of the water is hot as compared to the lower surface. So if the upper surface of the water is hot, then the oxygen, the amount of oxygen which is dissolved in water will be less as compared to the surface beneath. So fishes, they won't come to the earth surface, they won't come to the water surface easily during summer season because of lack of oxygen. तो इसके वजह से वो fish जो रहेंगे वो ज़्यादा डीप सी में रहते हैं. देखो फिशरमैन लोग क्या करते हैं? दे प्लांट देयर नेट इन डीप सी. ओके, तो जब लो टाइड होता है, दे मूव इन साइड, दे यूज़ हाई लेंथ बैम्बूज, दे कनेक्ट दोज बैम्बूज इन द सी शोर एंड दे टाई बिग नेट्स अराउंड इट एंड दे लीव इट. सो व्हेन दे विल बी अ हाई टाइड, all the fishes which are present at the low level, they get stuck in the net, and the next day during the low tide they remove it and they remove the fish. So ये कभी करते हैं in hot water season, in the hot season where the upper surface of the water is hot and the oxygen capacity of the water will be less. इसके लिए तो जितनी भी chemical factories है where they use coolant as a water near lake, okay, वो बैन कर दी गई. उसका रीज़न क्या है? बिकॉज दे टेक वाटर फ्रॉम द लेक एंड they use that water to cool the entire machinery, and the hot water is again released in the lake, and because of the hot water the oxygen carrying capacity of the lake decreases and it affects the aquatic life and the vegetation inside it. Okay, so remember, as temperature increases solubility of gas decreases. वो कम होता है because solubility of gas inside a liquid is an exothermic process. So as temperature increases, solubility of gas decreases. Second, third, you need to remember about pressure, which is very important. Now we know that gas are highly compressible. That is why when you increase the pressure of gas over a liquid, the solubility of gas increases. Like जो aerated drinks के बारे में आपको बताया. अब अगर बराबर देखना, in case of aerated drinks, the bottle is not completely filled with liquid. Okay, a partial part is remain empty at the bottle. ठीक है, वो बॉटल का पार्शियल पार्ट अपर सरफेस पे एम्प्टी रहता है. क्यों? बिकॉज इन दैट यू एड हाई प्रेशर गैस एंड एक्सेस गैस. रीजन कि वो जो बॉटल होगी, द बॉटल ऑफ एरिएटेड ड्रिंक्स कैप, वो सिर्फ यहाँ तक ही फिल किया है. And here there will be the excess gas, and the gas is filled inside with a high pressure. Why? Because pressure अप्लाई करने से गैस कंप्रेस हो सकती है, एंड कंप्रेस होने से उनकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी इन लिक्विड स्टेट, एंड देयर इज अ इक्विलिब्रियम. सी, ये जो गैस है ये एक्स्ट्रा गैस है. सो व्हेन यू ओपन इट, आपने जब उसको ओपन किया, ओके, जब कैप आपने उसको ओपन किया, सो व्हाट विल हैपन? दिस एक्स्ट्रा गैस विल रिलीज फ्रॉम योर, and the remaining gas is inside. Now why they fill extra gas? To maintain an equilibrium between dissolved gas and undissolved gas. Now this is a saturated solution of gas. Excess gas इसमें डाल दिया, अब इससे ज़्यादा गैस डिजॉल्व नहीं हो सकता, इसके लिए excess gas उसके surface पे रह जाती है, and there is a equilibrium between dissolved gas and undissolved gas. So when you open the cap and you start moving it, when you turn the cap, this excess gas will be released, and now you have this carbonated beverages, the gas inside the liquid. क्लियर है? सो प्रेशर इंक्रीज करने से व्हाट विल हैपन? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर. ठीक है? सो विद रिस्पेक्ट टू दिस, रिस्पेक्ट टू प्रेशर, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, वी हैव वन लॉ, हेनरीज लॉ. Okay, now Henry's law, it's all about, Henry's law is very simple. It says that solubility of gas inside a liquid is directly proportional to the pressure, a partial pressure of gas over the liquid. जितना आप प्रेशर से गैस
जितना आप गैस को प्रेशराइज करोगे लिक्विड में उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सोल्यूशन, जो लिक्विड के ऊपर गैस आपने प्रेशराइज किया है। And if you remove the proportionality sign, we can write down S is equal to KH into P, where KH is called as Henry's law constant. And here, when you use this formula, the unit of KH will be S upon P, that is solubility upon pressure. The solubility will be in moles per liter या moles per decimeter cube. And pressure अगर ATM में है तो पर ATM हो जाएगा, और अगर बार प्रेशर है तो मोल्स पर DM क्यूब पर बार, ऐसा भी हो सकता है बार प्रेशर। व्हाट इज द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ? सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ, रिमेंबर ये आप लोगों को थियरी में नहीं होगा, दिस विल बी देयर इन योर थियरी, बट ये आप लोगों को एंट्रेंस में काम आएगा। ओके, द सेकेंड स्टेटमेंट, इट सेज दैट the partial pressure of gas in an equilibrium is directly proportional to the mole fraction. If you remember, X stands for mole fraction of gas. So I write down X will be equal to mole fraction of gas. And mole fraction is nothing but number of moles of gas upon number of moles of solution. तो obvious बात है, जितना आप प्रेशर एक्सर्ट करते जाओगे गैस पे, उसका उतना नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूशन में बढ़ता जाएगा, क्योंकि उतना मास ऑफ गैस डिसॉल्व होगा। And when you remove this proportionality, again you get a KH into X, that is mole fraction of gas. Now see properly, here when you find the unit of KH, it will be P upon X. Pressure unit क्या होता है? ATM. mole fraction का कोई unit नहीं होता, so KH will be either ATM or either it will be bar. तो अगर आपको कभी भी न्यूमेरिकल में मोल फ्रैक्शन दिया है, यूज दिस फॉर्मूला। इफ इट इज मोल्स पर डीएम क्यूब के सॉल्युबिलिटी, यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, थियरी में आपको ये फॉर्मूला आएगा, एमसीक्यूज में यू कैन हैव दिस फॉर्मूला। एंड रिमेंबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, सी प्रॉपर्ली, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एंड KH आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो therefore if KH वैल्यू इज मोर, अगर ज्यादा दिया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विल बी लेस। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मोल फ्रैक्शन गैस का कम है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज लेस। इसका मतलब क्या हो गया? solubility of gas is less. So if KH value is more, then solubility of gas will be less. And also, as temperature increases, solubility decreases. So if you increase the temperature, KH value will increase and solubility of the gas will decrease. Okay, now उसका solubility कम हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि आपने ये टेम्परेचर बढ़ाया है, एंड टेम्परेचर इफेक्ट करता है सॉलिबिलिटी पे, बिकॉज वी नो दैट द गैस विच इज सॉलिबल is exothermic in nature. The solubility is exothermic. Okay guys, now what is the application of Henry's law? Henry's law says the partial pressure of gas is directly proportional to mole fraction, or the solubility of gas is directly proportional to the mole to the pressure of the gas over the solution. मतलब आप गैस को जितना प्रेशराइज करोगे वो उतना ज़्यादा soluble होगा। इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? Higher altitudes, people who go for trekking at higher altitudes, so at higher altitudes, mountain areas, the pressure is less. If the pressure is less, the solubility of gas inside the blood will be less, क्योंकि अपना blood ही अपना body में maximum क्या है? Water. It is made up of 65% of water, और उसके अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा। तो हायर एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर बहुत कम है, अगर प्रेशर कम है तो द डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी व्हाट? लेस इन दैट केस। अच्छा, when deep sea divers, when they go for the scuba diving, deep sea divers, okay, वो लोग क्या करते हैं? They carry a oxygen cylinder, but that is actually not pure oxygen, it is oxygen plus nitrogen. So when they go deep inside the sea, as we know that के pressure, as we go down the earth surface, जितना हम लोग नीचे जाएंगे, the lower altitude, the pressure is very high. So when they go deep inside the sea, the pressure is very high. Because of the high pressure, the dissolution of nitrogen gas from the cylinder and oxygen gas from the cylinder in our blood will be high. तो जब वो डीप सी में जाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा डिसॉल्व हो जाता है ब्लड में।
एंड व्हेन दे कम टू द अर्थ सरफेस, प्रेशर, अब क्या होगा, प्रेशर कम होने लगेगा. अगर प्रेशर कम होगा तो बॉडी में गैस का डिसोल्यूशन भी कम होगा, मतलब एक्सेस गैस बॉडी से निकलेगी. बट उस टाइम पे, एट दैट टाइम, द नाइट्रोजन क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. नाइट्रोजन causes bend, a painful effect when they, for the scuba divers, when they come to the earth, when they come to the normal atmospheric pressure, when they come to the earth surface, जब वो deep sea से earth surface पे आ रहे हैं तो pressure जो होगा वो ज़्यादा से कम होगा. अगर pressure कम होगा तो गैस का डिसोल्यूशन बॉडी में कम होगा, मतलब गैस रिलीज होगी. बट नाइट्रोजन, प्रॉब्लम ये है, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द नाइट्रोजन, द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द ब्लड वेसल causes bend, a painful action, जहाँ पर सेल का बर्स्ट होता है बॉडी के अंदर, तो वो पेनफुल एक्ट होता है. सो उसको अवॉइड करने के लिए नाउ इन सिलेंडर्स दे ऐड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस अराउंड 11.5% ऑफ हीलियम, बिकॉज हीलियम इज सच अ स्मॉल गैस कि जब आप डीप सी से ऊपर आओगे तो वो ईजीली सेल से निकल जाएगा विदाउट डैमेजिंग द सेल्स इनसाइड. सो वहाँ पर पेनफुल एक्ट कम होगा आपकी बॉडी पे. अच्छा, ऑक्सीजन अगर ज़्यादा डिजॉल्व हो गया, नो प्रॉब्लम. अगर वो ज़्यादा डिजॉल्व होता है तो इट इंक्रीजेज योर मेटाबॉलिज्म, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता. बट नाइट्रोजन से फ़र्क पड़ता है. इट कॉजेज अ बेंड, अ पेनफुल एक्ट ऑन द बॉडी. ओके, व्हेन यू कम फ्रॉम डीप सी टू द अर्थ सरफेस. इसके लिए सिलेंडर्स को डाइल्यूट किया जाता है हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नॉट ओनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. बट ये समझ में आया. Just try to memorize this thing with respect to Henry's law कि solubility of gas in liquid depends upon, highly depends on pressure. When you go to high altitude, the pressure is less, the solubility of oxygen will be less. So at that time, the people who go for trekking on high altitudes, they suffer from anoxia because of lack of oxygen. Second example याद रखना है, deep sea divers, they suffer bend because when they go inside deep sea, the pressure is very high, the solubility of gas will be more at that time. So nitrogen gas जो ज़्यादा soluble होता है, when they come to the back to the earth surface, the nitrogen is released and they cause a bend, a painful action on the body. To avoid this, the cylinder is diluted with helium. Third example आपको याद रखना है कि fishermen, they normally during summer season they plant their net जो डीप सी ड्यूरिंग लो टाइड्स. तो हाई टाइड्स में जितने भी लोअर पे फिशेस है वो ट्रैक हो जाते हैं और फिशेस ज़्यादा अपर सरफेस पे नहीं मिलता है. क्यों? बिकॉज व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, द अपर सरफेस ऑफ वाटर will be having less oxygen, so fishes try to remain more in the deep sea rather coming to the rather coming to the sea surface because वहाँ पर ऑक्सीजन कम होता है. ओके, सो दिस इज अबाउट हेनरीज लॉ. नाउ हेनरीज लॉ का लिमिटेशन क्या है? सबसे पहला लिमिटेशन हेनरीज लॉ के लिए कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द गैस केमिकली रिएक्ट, जैसा CO2, अमोनिया. नोट डाउन करना ये सब चीज़ें, CO2, अमोनिया, ये सब गैस पे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज वो जाके वाटर से रिएक्ट करते हैं. तो इसके लिए हेनरीज लॉ पढ़ने के लिए यू रिक्वायर टू स्टडी दोज गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर प्लस दे शुड बी हाईली सॉल्युबल, वो भी होना चाहिए क्योंकि सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हो. सो इफ़ यू ट्राई टू स्टडी हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है तो उस पर हेनरीज लॉ के वैल्यूज़ में आपको वेरिएशंस मिलेंगे. थर्ड, आपको ये याद रखना है कि हेनरीज लॉ शुड नॉट बी कैरिड आउट एट अ वेरी 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 लो टेम्परेचर. नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर पे तो नहीं होगा बिकॉज वहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल बी लीस्ट एट दिस. सो दिस इज लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ. ओके, सो पॉज करके जो भी कॉपी करना है प्लीज़ कॉपी इट डाउन. और इसमें मैं एक पार्ट आपको बता देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द मोल फ्रैक्शन. रिमेंबर with respect to mole fraction of gas, suppose question में dilute solution दिया है, so we know that mole fraction of gas will be mole fraction, number of moles of gas upon number of moles of solution. suppose आपने aqueous solution लिया है तो number of moles of gas plus number of moles of liquid, ये आपका mole fraction होगा. but for dilute solution जिसमें आपने सल्यूट बहुत कम रखा है और आपका सल्यूट कौन है यहाँ पर? गैस है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज वेरी 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 लेस एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड. तो उसमें आप डिनोमिनेटर में से नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस को निग्लेक्ट कर सकते हो
we can write down that number of moles of gas plus number of moles of liquid is equal to number of moles of liquid, because this value is very small, it can be neglected. So now it can be written as that mole fraction of gas is number of moles of gas upon number of moles of liquid. ये आपका liquid क्या है, solvent, जो ज़्यादा अमाउंट में है. तो डाइल्यूट सोल्यूशन में आप नीचे डिनोमिनेटर से गैस को निग्लेक्ट कर सकते हैं इन दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशंस. रिमेंबर दिस हेनरीज लॉ, प्लीज कॉपी इट डाउन.